السلام علیکم. آج کے آرٹیکل میں ہم سٹڈی کرنے جا رہے ہیں ڈیمنز اینڈ ڈیٹانٹ. ڈیٹانٹ کا مطلب ہوتا ہے کشیدہ تعلقات میں کمی یا ریلیکسیشن آف سٹرینڈ ریلیشنز. ڈیمنز ویسے تو شیطان کو بولتے ہیں، لیکن یہاں پہ ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے ڈیمونائزڈ کو یوز کیا گیا ہے دوسرے کنٹریز کی ریپوٹیشن خراب کرنے میں. اس آرٹیکل کے رائٹر ہیں نورانی صاحب، اور نورانی صاحب ایک بہت اچھے آتھر ہیں اور ہائیلی ریکمینڈڈ ہیں فار سی ایس ایس اور پی ایم ایس کے ایگزامینیشن ایسے رائٹنگ کے لیے اسپیسیفکلی. اور آپ یہاں پہ دیکھیں گے کس طرح سے وہ اپنے آرگومنٹ بلڈ کرتے ہیں اور کس طرح سے آرگومنٹس کو سپورٹ کرتے ہیں. تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں. آفٹر اے لانگ اسپیل آف کنفرنٹیشن، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ کنفرنٹیشن کا مطلب ہوتا ہے کنفلکٹ، کلیش، برش یا فائٹ. جو یہ کنفلکٹ تھا، یہ جو فائٹ تھی، اس کے لانگ سپیل کے بعد، اور اس لانگ سپیل میں کیا تھا؟ انریچڈ بائی ریٹورک. ریٹورک کا مطلب ہوتا ہے ایکسپریشن یا بیان بازی. یہ ایک ایسی بیان بازی یا ایکسپریشن سے فل تھا which demonized the other side. demonized کا مطلب ہوتا ہے portray as wicked or threatening. تو اس میں یہ جو سپیل تھا، کنفلکٹ تھا، اس میں کیا خاص بات تھی؟ اس کا یہ ایکسپریشن دیا گیا تھا کہ جو دوسری سائیڈ ہے وہ بری ہے. The world seemed to go for a spell of conciliation. تو اب جو دنیا ہے یہ موو کر رہی ہے ایسے پیریڈ کی طرف جو کہ صلح سے بھرپور ہوگا. ایران از ان ٹاکس ود سعودی عربیہ. ایران بات چیت کر رہا ہے سعودی عربیہ کے ساتھ، یو ایس کے ساتھ اور اس کے الائز کے ساتھ آن ریوائونگ دا نیوکلیئر اکارڈ. نیوکلیئر اکارڈ کو ریوائیو کرنے کے لیے. آگے ہم دیکھ رہے ہیں سیمی کولن ہے. سیمی کولن دو سینٹنسز کو سپریٹ کر رہا ہوتا ہے اور دونوں سینٹنسز کے اپنے فل واضح میننگ ہوتے ہیں. دا یو ایس اینڈ چائنا ٹاک ٹو ایچ ادر. یو ایس اور چائنا نے بھی آپس میں بات کی ہے. ٹو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سینٹینس پہ زور دیا ہے ڈسکورس مارکرز 2 لگا کے ڈبل کاماز کے اندر فلو آف سینٹینس کو بریک کیے بنا. البیٹ کا مطلب ہوتا ہے اگرچہ. آن لمیٹڈ ایشو آف کلائمیٹ چینج. اگرچہ انہوں نے کلائمیٹ چینج کے ایک لمیٹڈ مسئلے پہ بات کی ہے. بٹ پریزیڈنٹ جو بائیڈن ویسٹڈ اے گڈ اپرچونٹی. لیکن جو پریزیڈنٹ ہیں امریکہ کے جو بائیڈن، انہوں نے ایک اچھا موقع کھو دیا ہے فار فوسٹرنگ ڈیٹانٹ ود نارتھ کوریا بائی ہز کریٹیسزم. فوسٹرنگ کا مطلب ہوتا ہے پروموٹ یا سٹیمولیٹ کرنا، ایڈوانس کرنا. ڈیٹانٹ کا ہم نے جیسا کہ پہلے پڑھا کہ ریلیکسیشن آف سٹرینڈ ریلیشن. تو انہوں نے یہ موقع کس طرح سے کھو دیا ہے؟ اپنے کریٹیسزم کی وجہ سے، تنقید کی وجہ سے نارتھ کوریا کے اوپر. The US won hegemony. hegemony کا مطلب ہوتا ہے dominance, supremacy. تو US نے یہ hegemony یا supremacy کب جیتی؟ after World War II کے بعد. برٹن جو تھا اس سے پہلے جو تھا hegemonic power تھا. تو اسپیشلی بتاتا ہے ڈبل کاماز کے اندر فلو آف سینٹینس کو بریک کیے بنا. اسپیشلی اٹس لیڈر ونسٹن چرچل. برٹن کے جو لیڈر تھے ونسٹن چرچل bitterly rued its folly. rued کا مطلب ہوتا ہے ریگریٹ کرنا، افسوس کرنا. folly کا مطلب ہوتا ہے foolishness کے اوپر. ونسٹن چرچل کون تھے جی؟ یہ پرائم منسٹر تھے یو کے فرام 1940 to 1945. یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سیکنڈ ورلڈ وار میں پرائم منسٹر تھے. اینڈ اگین فرام 1951 to 1955. تو آگے ہم دیکھیں گے کہ وہ اپنے فیصلے پہ، اپنے ڈیسیجن پہ کیوں ریگریٹ کر رہے تھے اور کس طرح سے ڈپلومیسی جو ڈاکٹرائن تھی ڈپلومیسی کی، نیگوشیشن کی، وہ موو کر گئی ڈپلومیسی آف سٹرینتھ کی جانب. فرانس کے جو لیڈر تھے چارلس ڈی گال، تو انہوں نے فورسا کر لیا تھا، اس کو پہلے سے ہی دیکھ لیا تھا کہ اس طرح سے ہونے جا رہا ہے. چارلس ڈی گال جی یہ فرانس کے لیڈر تھے، فرینچ آرمی کے آفیسر تھے اور اسٹیٹ مین تھے، جنہوں نے فری فرانس اگینسٹ نازی جرمنی کے اگینسٹ لیڈ کیا تھا ورلڈ وار 2 میں، اور چیئر کی تھی پروویژنل گورنمنٹ آف فرینچ ریپبلک فرام 1944 to 1946. کس لیے؟ ٹو ری اسٹیبلش ڈیموکریسی ان فرانس. دا یو ایس فلی ایکسپلائٹڈ دی سچویشن. ایکسپلائٹڈ کا مطلب ہوتا ہے استحصال کرنا، یوز کرنا اپنے بینیفٹ کے لیے. تو اس صورتحال کو یو ایس نے ایکسپلائٹ کیا اینڈ کنٹریبیوٹیڈ ٹو سائنس اینڈ آرٹ آف ڈپلومیسی. تو انہوں نے کنٹریبیوٹ کیا یہ جو سائنس اور آرٹ تھا ڈپلومیسی کا. ڈپلومیسی ہوتا ہے انٹرنیشنل ریلیشنز کو گورن کرنا. اگر ہم اس کی ڈیفینیشن دیکھیں تو ڈپلومیسی از دا پریکٹس آف انفلوئنسنگ دا ڈیسیژنز اینڈ کنڈکٹ آف فارن گورنمنٹس اور آرگنائزیشن تھرو ڈائلاگ، نیگوشیشن اینڈ نان وائلنٹ مینس. تو اس کو یو ایس نے افیکٹ کیا کس طرح سے؟ ڈاکٹرائنز آف ڈیوبیس ورتھ. تو
तो डॉक्ट्राइन क्या होता है? बिलीफ होता है या बॉडी ऑफ टीचिंग होता है, टॉट प्रिंसिपल्स होते हैं, ये एज ए एसेंस ऑफ टीचिंग और ब्रांच ऑफ नॉलेज इन ए बिलीफ सिस्टम। आप कह सकते हैं एक बिलीफ सिस्टम था जिसको यूएस ने इफेक्ट किया अपनी ड्यूबियस या डाउटफुल वर्थ के जरिए। इसने क्या कर दिया? डिस्कार्ड कर दिया। डिस्कार्ड का मतलब होता है डिस्पोज कर देना, थ्रो अवे कर देना उन डॉक्ट्राइन्स को जो बहुत ज्यादा सोफिस्टिकेटेड थी और यूरोपियन की जानिब से जो इवॉल्व हुई थी, और ये जो इवॉल्व हुई थी इनको सेंचुरीज लगी थी इवॉल्व होने में डॉक्ट्राइन ऑफ निगोशिएशन को। अर्ली इन द डेज ऑफ कोल्ड वॉर स्टार्ट हुई थी वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, और ये एक वॉर थी कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म के दरमियान। आज के हमने जो एडिटोरियल डिस्कस किए थे उसमें हमने कोल्ड वॉर को बड़ा ही डिटेल डिस्कस किया था। यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट डीन एचिसन सेड फेमसली, तो जो यूएस के सेक्रेटरी थे उस वक्त डीन एचिसन, उन्होंने क्या कहा था? यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर आपने किसी को कोट करना है, कोई कोटेशन कोट करनी है, तो आप किस तरह से कोट करेंगे? यहाँ पे आप कोलन भी लगा सकते हैं और कॉमा भी लगा सकते हैं, उसके बाद डबल इन्वर्टेड कामा शुरू होंगे और जहां पे अपनी आप कोटेशन खत्म करेंगे वहां पे इन्वर्टेड कामा बंद हो जाएंगे। व्हाट वी मस्ट डू इज टू क्रिएट सिचुएशन ऑफ स्ट्रेंथ, हमें क्या करना चाहिए? एक ताकत की हालत पैदा करनी चाहिए। वी मस्ट बिल्ड स्ट्रेंथ, हमें ताकत बनानी चाहिए। एंड इफ वी क्रिएट दैट स्ट्रेंथ देन आई थिंक द होल सिचुएशन इन द वर्ल्ड बिगिंस टू चेंज, और अगर हम ऐसी ताकत बना लेते हैं तो जो हालत है दुनिया की वो तब्दील होना शुरू हो जाएगी। With the change there comes a difference in the negotiating position, तो ये जो चेंज आएगी, तब्दीली आएगी, इसके साथ साथ जो निगोशिएशन की पोजीशन है, टॉक की पोजीशन है, उसमें भी तब्दीली आएगी ऑफ द वेरियस पार्टीज, मुख्तलिफ पार्टीज की। एंड आउट ऑफ दैट आई शुड होप दैट देयर वुड बी ए विलिंगनेस ऑन द पार्ट ऑफ क्रेमलिन टू रिकॉग्नाइज फैक्ट्स, और मैं उम्मीद करता हूं कि इसकी बिना पर क्रेमलिन इस जो हकीकत है, ये जो हकायक हैं, फैक्ट्स हैं, इसको रिकॉग्नाइज करेंगे, इसको मान लेंगे। जिस तरह से यूएस में हुकूमत जो होती है उसको हम व्हाइट हाउस कहते हैं, इस तरह जो गवर्नमेंट ऑफ रशियन फेडरेशन होती है उसको क्रेमलिन कहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं सेमीकोलन लगा के सेंटेंस को अलग किया गया है और जोड़ा भी गया है। इस तरह सेमीकोलन के दरमियान जो भी सेंटेंस होते हैं उनके अपने वाज़े मीनिंग्स होते हैं। क्राफ्टिंग ए वर्ल्ड ऑर्डर मीन्स रिनंसिएशन ऑफ यूएस डॉक्ट्राइन, रिनंसिएशन होता है फॉर्मल रिजेक्शन। तो अगर हम एक नया वर्ल्ड ऑर्डर क्राफ्ट करना चाहते हैं तो इसका मतलब होगा कि यूएस की जो डॉक्ट्राइन ऑफ स्ट्रेंथ है इसको रिनंसिएट करना होगा, रिजेक्ट करना होगा। दिस वाज हाउ द डॉक्ट्राइन ऑफ निगोशिएशन फ्रॉम स्ट्रेंथ वाज बॉर्न, इस तरह से जो ऊपर हमने बयान पढ़ा यूएस के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का डीन एचिसन का, यहां से जन्म लेती है डॉक्ट्राइन ऑफ निगोशिएशन फ्रॉम स्ट्रेंथ। इट हैज पॉइजन्ड द डिस्कोर्स ऑफ डिप्लोमेसी, डिस्कोर्स होता है कन्वर्सेशन या टॉक, जो डिप्लोमेसी की टॉक्स होती थी, निगोशिएशन होती थी, इसको इसने जहर आलूद कर दिया। एंड ऑल्टर इट्स कंडक्ट फॉर वॉर्स, और इसका रास्ता तब्दील कर दिया बदतर की जानिब। इट्स कॉन्सिक्वेंसेस वर रिफ्यूजल टू टॉक, इसके नतायज क्या हुए? लोगों ने, मुमालिक ने, स्टेट्स ने बातचीत करने से इनकार कर दिया। वाइल देयर वर येट अपॉर्चुनिटीज फॉर सेटलमेंट, जबकि वहां पे सेटलमेंट के मौके मौजूद थे, कंसिलिएशन के मौके मौजूद थे। बिल्डिंग अप हॉस्टाइल अलायंसेस, तो इसकी वजह से क्या हुआ? एक दुश्मनी जो थी, अलायंस, ऐसी दुश्मन की जो अलायंस थी वो पैदा हो गई। टू बटरेस स्ट्रेंथ, बटरेस का मतलब होता है स्ट्रेंथन या फोर्टिफाई, इकट्ठा, तो ताकत को इकट्ठा करना शुरू कर दिया गया। एंड डिबेसमेंट ऑफ लैंग्वेज ऑफ डिप्लोमेसी, डिबेसमेंट का मतलब होता है एक्शन और प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग द क्वालिटी और वैल्यू, तो ये जो लैंग्वेज ऑफ डिप्लोमेसी थी इसकी क्वालिटी रिड्यूस हो गई। The old diplomacy was replaced by megaphone diplomacy, जो old style diplomacy थी, बंद कमरों में जो डिप्लोमेसी होती थी, उसको रिप्लेस कर दिया गया मेगाफोन डिप्लोमेसी से। मेगाफोन डिप्लोमेसी होता है negotiation between countries and parties are held through press releases and announcements। ऐसा आजकल हम पाकिस्तान में भी देख रहे हैं कि जो अभी पीडीएम की जो डिस्पर्समेंट हुई है, डिसमेंटल हुई है जो पीडीएम, उसकी वजह भी आई थिंक मेगाफोन डिप्लोमेसी थी कि हर बात मीडिया पे हो रही थी, प्रेस पे वो एक दूसरे को ब्लेम कर रहे थे छोटी छोटी गलतियों के लिए। विंस्टन चर्चिल जो कि यूके के प्राइम मिनिस्टर थे, द एपिटम ऑफ ओल्ड डिप्लोमेसी, ये एम्बॉडीमेंट थे, एसेंस थे, पैरागॉन थे ओल्ड डिप्लोमेसी के, हेल्ड ए कंट्रेरी व्यू, उनका व्यू जो था, ये जो यूएस के सेक्रेटरी थे एचिसन, उनसे कंट्रेरी कर रहा था, मुखालिफ था। ही वांटेड ए पैक्ट विद सोवियत यूनियन इन 1944, वो मुआहदा करना चाहते थे सोवियत यूनियन से 1944 में,
on their respective sphere of influences in Eastern Europe के उनके अपने अपने influence होंगे, sphere of influence होंगे Eastern Europe में। FD Roosevelt sabotaged it। FD Roosevelt उस वक्त अमेरिकन प्रेसिडेंट थे, उन्होंने सारे प्रोसेस ऑफ डिप्लोमेसी का जो था, नेगोशिएशन का, इसको सेबोटाज कर दिया, डिसरप्ट कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया। फंडामेंटली जो FDR रोजवेल्ट थे, उन्होंने अमेरिकन हेजीमनी सॉर्ट की थी। हेजीमनी मतलब सुप्रीमेसी सॉर्ट चाहते थे वो। Churchill's repeated calls for a diplomatic confrontation in 1948 and 1949 were based on the realization that a failure to negotiate would mortgage the future। चर्चिल ने जो रिपीटेड कॉल थी डिप्लोमेटिक कन्फ्रंटेशन के लिए 1948 और 1949 में, तो वो इस रियलाइजेशन पे, इस हकायक पे बेस कर रहे थे कि अगर दुनिया निगोशिएट करने में फेल हो जाती है तो ये फ्यूचर के लिए बहुत बड़ा खतरा होगा। He said in 1948, उन्होंने 1948 में कहा, अगेन हमने देखा किसी चीज को कोट करना हो, हमने कहा था यहाँ पे हम कॉमा भी लगा सकते हैं, यहाँ पे कॉलन भी लगा सकते हैं, देन इन्वर्टेड कॉमा शुरू हुए हैं। The question is asked, सवाल ये पूछा गया, what will happen, क्या होगा, when they get the atomic bomb themselves, जब वो अटोमिक बम हासिल कर लेंगे, and have accumulated a large store, और बहुत ज्यादा क्वांटिटी में इसको स्टोर कर लेंगे। You can judge yourself, आप खुद जज कर सकते हैं, what will happen then, तब क्या होगा, by what is happening now, ये देखते हुए कि अब क्या हो रहा है। If they can continue month after month disturbing and tormenting the world, अगर वो दुनिया को डिस्टर्ब करना, और टर्मेंट करने का मतलब होता है सफर करना, इन्फ्लिक्टिंग सफरिंग, तो वो सफर करना दुनिया को जारी रखेंगे। ट्रस्टिंग टू आवर क्रिश्चियन एंड अल्ट्रुइस्टिक इनहिबिशन, क्रिश्चियन और अल्ट्रुइस्टिक का मतलब होता है कि अनसेल्फिश या सेल्फलेस जो इंस्टिंक्ट्स हैं उनको, उन पे ट्रस्ट करते हुए, अगेंस्ट यूजिंग दिस स्ट्रेंज न्यू पावर अगेंस्ट देम, ये जो अजीब पावर है वो उनके खिलाफ यूज करेंगे। व्हाट विल दे डू, वो तब क्या करेंगे, when they themselves have large quantities of atomic bomb, जब उनके पास बड़ी मिकदार में एटॉमिक बम मौजूद होंगे। No one in his senses can believe, कोई भी ऐसा शख्स जो कि सेंसेस में हो अपने, वो यकीन नहीं कर सकता, that we have a limitless period of time before us, कि हमारे सामने लामतना ही वक्त है। We ought to bring matters to a head and make a final settlement, हमें मामलात को आगे लाना होगा, एक फाइनल सेटलमेंट करनी होगी। The Western nations will be far more likely to reach a lasting settlement, जो वेस्टर्न नेशंस हैं वो एक लॉन्ग लास्टिंग सेटलमेंट की जाने पहुंच सकते हैं, विदाउट ब्लडशेड, कोई भी खून बहाए बिना। इफ दे फार्मुलेट देयर जस्ट डिमांड्स, अगर वो अपनी जो डिमांड्स हैं उनको जस्ट रखते हैं, मुनासिब रखते हैं। while they have the atomic power, जब उनके पास एटॉमिक पावर भी है, and before the Russian communists have got it to, इससे पहले के जो रशियन कम्युनिस्ट हैं वो भी एटॉमिक पावर बन जाएं। अमेरिका sought absolute security, अमेरिका चाहता था एब्सोल्यूट सिक्योरिटी, मुकम्मल सिक्योरिटी, बट एज हेनरी किसिंजर रिपीटली वार्न, लेकिन हेनरी किसिंजर ने बार बार वार्न किया था, एब्सोल्यूट सिक्योरिटी फॉर वन पावर मींस एब्सोल्यूट इनसिक्योरिटी फॉर अदर, कि एक अगर स्टेट के लिए एब्सोल्यूट सिक्योरिटी जो है वो बाकी तमाम के लिए एब्सोल्यूट इनसिक्योरिटी काज करेगी। प्रेसिडेंट ट्रूमैन टर्न्ड ए डीफ ईयर टू स्टैलिन्स रिक्वेस्ट, टर्न ए डीफ ईयर का मतलब होता है इग्नोर कर देना, तो उन्होंने इग्नोर कर दिया स्टैलिन्स की जो रिक्वेस्ट थी फॉर ए समिट के लिए, अर्ली बट फॉर्मेटिव फेज ऑफ कोल्ड वार, जब कोल्ड वार स्टार्ट होने जा रही थी। प्रेसिडेंट ट्रूमैन अमेरिकन प्रेसिडेंट थे 33rd, और ये इन्होंने प्रेजाइड किया 1945 से 1953 तक। स्टालिन थे रशियन प्रेसिडेंट लीडर थे सोवियत यूनियन के 1927 से 1953 तक। द पोस्चर विच द ग्रेट हेजीमॉन अडॉप्टेड देन इन 1948 to 1949 was cloaked, तो उस वक्त ग्रेट हेजीमॉन कौन था, अमेरिका था, और उन्होंने जो पोस्चर, जो अंदाज इख्तियार किया वो क्लोक था, छुपा हुआ था, विद द डॉक्ट्राइन ऑफ निगोशिएशन फ्रॉम स्ट्रेंथ, तो क्या उन्होंने डॉक्ट्राइन अपनाई हुई थी, डॉक्ट्राइन ऑफ स्ट्रेंथ अपनाई हुई थी, विद ऑल इट्स टेरिबल कोरोलरीज, इसका मतलब होता है कि तमाम अपने कॉन्सिक्वेंसेस या रिजल्ट्स के साथ। वो क्या थे, उससे किस चीज ने जन्म लिया, अपॉर्चुनिस्टिक अलायंसेस ने, रिजीम चेंज ने, CIA की इंटरफेरेंस ने डिफरेंट कंट्रीज के इंटरनल अफेयर्स में, कोवर्ट मतलब सीक्रेट एक्शंस, और प्रोपेगेंडा वारफेयर ने। द रिटोरिक वाज लेस्ड विद सेल्फ राइटियसनेस, ये जो एक्सप्रेशन था लेस्ड था, फिटेड था, फुल था कि हम ये सिर्फ ठीक हैं, जो अदर लोगों के इंटरेस्ट थे उनको इग्नोर कर दिया गया।
By now, US has laid waste 4 countries of the developing world. अब तक US जो डेवलपिंग है, तरक्की पजीर दुनिया के मुमालिक हैं, 4 ममालिक, उनको तबाह कर चुका है। उनमें शामिल है अफगानिस्तान, ईरान, लीबिया और सीरिया। तमाम ये मुस्लिम स्टेट्स से हम देख रहे हैं। जो लिबरल ग्रेट प्रेसिडेंट जो खुद को कहते हैं बारक ओबामा, उन्होंने एरोगेंटली डिक्लेयर किया, बहुत ही तकब्बुराना अंदाज में डिक्लेयर किया कि असद मस्ट गो, कि बशार अल असद को जाना चाहिए। ये बशार अल असद सीरिया के प्रेसिडेंट हैं। ऑल दीज इंटरवेंशंस एंडेड इन फेल्योर, ये तमाम इंटरवेंशंस नाकामी का सबब बनी। 9/11 वाज नॉट एन एक्ट ऑफ वार, जो 9/11 था ये एक्ट ऑफ वार नहीं था, बट एज ज़बिग्नेव ब्रेज़िन्स्की एडमिटेड, जिस तरह से ब्रेज़िन्स्की ने एडमिट किया है, माना किया है कि ये एक्ट ऑफ टेररिज्म था। नॉट बाई द स्टेट ऑफ अफगानिस्तान, अफगानिस्तान के स्टेट की जानिब से ये नहीं था, बट बाई इट्स गेस्ट, बल्कि इसके मेहमान की जानिब से था, जो कि उसामा बिन लादेन थे। What did the US achieve by intervening as it did in Afghanistan 20 years ago and in Iraq? तो US को इससे क्या हासिल हुआ, यहाँ पे क्वेश्चन पुट करते हैं आथर, अफगानिस्तान और इराक में इंटरवीन करने में, यहाँ पे हमला करने में। The world order which the US established rested on sheer force. जो वर्ल्ड ऑर्डर US ने एस्टेब्लिश किया है वो किस चीज पे बेस कर रहा है? ताकत पे, रिनंसिएशन ऑफ निगोशिएशंस पे, कि टाक को निगलेक्ट करने पे, रिजेक्ट करने पे, एंड अब्यूज ऑफ अदर, और दूसरों को अब्यूज करने पे। द लैंग्वेज डिटीरिएटेड, जो टाक की लैंग्वेज थी, डिप्लोमेसी की लैंग्वेज थी, वो डिटीरिएट कर रही है, खत्म हो रही है। क्राफ्टिंग ए वर्ल्ड ऑर्डर मीन्स रिनंसिएशन ऑफ अमेरिकन डॉक्ट्राइन। अगर क्राफ्ट करना है, बनाना है वर्ल्ड ऑर्डर, तो इसका मतलब है कि जो अमेरिका की डॉक्ट्राइन ऑफ स्ट्रेंथ है, इसको रिजेक्ट करना होगा और इसकी प्रैक्टिसेस को भी रिजेक्ट करना होगा। सैडली, लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि बोथ वर एप्ड बाय सम लीडर्स। ये जो दोनों डॉक्ट्राइन्स थी, प्रैक्टिस थी अमेरिकन डॉक्ट्राइन की, एप्ड की गई, इसको मिमिक किया गया, इसको कॉपी किया गया थर्ड वर्ल्ड के कंट्रीज के कुछ लीडर्स की जानिब से, अपने जो उनके वीकर नेबर्स थे उनकी जानिब। द सेम टेक्निक्स ऑफ डेमोनाइजेशन ऑफ अदर स्टेट्स वर अडॉप्टेड, और इसी तरह की जो टेक्निक्स अडॉप्ट की गई दूसरे स्टेट्स को डेमोनाइज करने की, उनकी रिप्यूट खराब करने की। द सोवियत यूनियन वाज डेमोनाइज्ड सिंस इट्स बर्थ, सोवियत यूनियन को डेमोनाइज्ड किया गया जब से ये वजूद में आया, 1917 से टिल 1941 तक, जब ये इसको अटैक किया गया हिटलर की जानिब से। चाइना को भी डेमोनाइज किया गया इसकी बर्थ से लेके 1949 से, जब तक के 1971 में यूएस के जो थे डॉक्टर किसिंजर, उन्होंने ये जो रिपेयर किया इस ब्रिज को, इस फासले को। आजकल हम दोबारा देख रहे हैं कि यूएस दोबारा टारगेट कर रहा है इसको, चाइना को, और जो बिडेन ने भी व्लादिमीर पुतिन को किलर कहा है, क्रिटिसाइज किया है हार्शली। तो इसकी वजह से हम ये देख सकते हैं कि कोल्ड वार दोबारा स्टार्ट हो सकती है। ऑल दिस लेफ्ट अमेरिकन अलाइज स्पेशली जापान शॉक। इस तरह के बिहेवियर ने अमेरिका के अलाइंस को शॉक कर दिया, हैरान कर दिया। द यूएस डेवलप्ड ए स्ट्रॉन्ग टेस्ट फॉर ईटिंग इट्स ओन वर्ड। ईटिंग इट्स ओन वर्ड का मतलब है कि प्रूवन रॉन्ग, गलत साबित हो जाना। तो यूएस के ने जो चीजें डेवलप की हैं, तो इससे ये साबित होता है कि वो बार बार रॉन्ग प्रूव हुआ है। बट वेयर विल दिस लीव द यूएस अलाइज ऑफ टुडे, लेकिन ये यूएस के अलाइज आज के जो सिचुएशन है यहाँ पे कहाँ पे जाएंगे। तो ये जी ब्रीफ एनालिसिस था आज की ओपिनियन जो कि नूरानी साहब ने पब्लिश की थी उसके बारे में। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं डेली अपडेट्स हासिल करने के लिए। थैंक यू सो मच।